friends, good afternoon to all of you and welcome back to my YouTube channel ePatcom. So friends, today I'm going to make this video on the topic e-way bill. So today I'm going to discuss about e-way bill. So first let me introduce ki today what are those things which I'm going to cover in this particular video. So today I'm going to discuss about e-way bill, all the provisions regarding e-way bill under section 68. So in this particular video I'm going to discuss about what is an e-way bill, means meaning of e-way bill, when to generate e-way bill, who should generate e-way bill, cases when e-way bill is not required to be generated, status of implementation across India, how to generate e-way bill, validity of e-way bill, and documents required for e-way bill. So these topics I'm going to cover in this particular video. So please stay tuned till end of this video. So friends, सबसे पहले तो let us discuss about the meaning of e-way bill. That what is an e-way bill and when it is generated. So e-way bill is an electronic way bill. Electronic way bill for movement of goods to be generated on e-way bill portal. It means that e-way bill is an electronic way bill which is generated for the movement of goods. If the person is causing the movement of goods in that from one place to another place, in that particular case it is required to be generate e-way bill. So a GST registered person cannot transport goods in a vehicle whose value exceeds rupees 50,000 without an e-way bill that is generated on e-way bill gst.gov.in. इसका क्या मतलब है कि those person or those transporter who is moving the goods from one place to another place of value exceeding rupees 50,000, अगर जो ट्रांसपोर्ट में गुड्स है जिसको हम मूव करा रहे हैं उस गुड्स की वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है तो इन दैट पर्टिकुलर केस ई-वे बिल जनरेशन इज रिक्वायर्ड बाय द सप्लायर और ट्रांसपोर्टर. वहां पर हमारा क्या है, ई-वे बिल हमको जनरेट करना होता है. तो सिंपली अगर मैं बोलूं कि ई-वे बिल क्या है, तो एज पर सेक्शन 68 ऑफ द CGST एक्ट, the government may require the person in charge of conveyance carrying any consignment of goods of value exceeding rupees 50,000 to carry with him such documents and such devices as may be prescribed. एंड ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी डिवाइसेस हैं वो हमारा क्या होता है, ई-वे बिल हम उसको बोलते हैं कि एक पोर्टल पे जा करके हमको अपनी सारी इंफॉर्मेशन अपडेट करनी होती है, फीड करनी होती है, जिसको हम ई-वे बिल पोर्टल बोलते हैं. ठीक है. सो ऑल्टरनेटिवली ई-वे बिल कैन ऑल्सो बी जनरेटेड और कैंसल्ड थ्रू SMS, Android app and by site to site integration through API. API stands for Application Program Interface. तो ये जो कुछ सहूलत दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि you can generate your e-way bill through SMS, through API mode. ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंटरफेस, वहां पे हम क्या करते हैं, अपने ई-वे बिल को जनरेट या कैंसिल कर सकते हैं. और ई-वे बिल क्या है वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ई-वे बिल इज एन इलेक्ट्रॉनिक बिल विच इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड when the supplier or transporter is moving goods from one place to another place whose value is more than rupees 50,000, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ट्रांसपोर्टर या सप्लायर जो है एक बिल उसको जनरेट करना होता है इलेक्ट्रॉनिकली विच इज कॉल्ड ई-वे बिल. नाउ द सेकेंड पॉइंट, व्हेन शुड ई-वे बिल बी इशूड, हमको ई-वे बिल कब इशू करना है. ठीक है, तो यहां पर क्या रहा है, ई-वे बिल विल बी जनरेटेड वेयर देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स इन अ व्हीकल. जब हम किसी व्हीकल में या कन्वेंस में गुड्स को मूव करा रहे होते हैं ऑफ वैल्यू मोर देन रुपीज 50,000, इधर ईच इनवॉइस और इन एग्रीगेट ऑफ ऑल इनवॉइसेस इन व्हीकल और कन्वेंस. इन केस ऑफ वेरियस इनवॉइसेस you have to take the aggregate value of all the invoices. You have to take the aggregate value of all the invoices. So this is the case when the e-way bill generation is required. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई वो कंडीशन बताइए या वो केस बताइए जब हमको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ता है, तो आप कहेंगे कि सर जब हम गुड्स का मूवमेंट कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, किससे कर रहे हैं, किसी व्हीकल या किसी कन्वेंस से कर रहे हैं, और उस गुड्स की वैल्यू जो हम मूव कर रहे हैं उन गुड्स की वैल्यू
जो एग्रीगेट है दैट इज मोर देन ₹50,000, दैट इज मोर देन ₹50,000, तो इन दैट पर्टिकुलर केस द ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। अच्छा, ये जो हमने कहा कि ये जो वैल्यू ऑफ ₹50,000 है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? हाउ द वैल्यू ऑफ ₹50,000 इज कैलकुलेटेड एंड व्हाट आर द थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन दिस लिमिट। ये जो लिमिट हमको दी गई ₹50,000 की, इस लिमिट में हम क्या क्या चीजों को इंक्लूड करेंगे? तो इट इन रिलेशन टू अ सप्लाई, इट मीन्स दैट जो हम सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की, तो वो जो सप्लाई है गुड्स की, उसकी वैल्यू को हम इंक्लूड करेंगे। इट मीन्स दैट वॉट एवर सप्लाई द सप्लायर इज मेकिंग, द वैल्यू ऑफ दो सप्लाईज इज इंक्लूडेड इन द ₹50 while counting the while calculating the value of ₹50,000। दूसरा है for reason other than supply। other than supply का मतलब क्या है कि हम गुड्स की सप्लाई नहीं कर रहे हैं, we are only making the movement of goods from one place to another place। आई एम नॉट अ सप्लायर, मैं सब गुड्स की सप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ गुड्स का मूवमेंट कर रहा हूं, या रिटर्न जो है वो है, या जॉब वर्क है, ठीक है, जॉब वर्क के लिए मैं कुछ गुड्स किसी को भेजता हूं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस दोज वैल्यू शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड वाइल काउंटिंग ₹50,000। सपोज दैट मैं गुड्स को सप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को सिर्फ और सिर्फ मूव करा रहा हूं, I am making only the movement of goods from one place to another place. Supply is not there. सप्लाई क्या थी वो हमने डिस्कस किया था कि सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, फॉर कंसिडरेशन ऑफ कैश जो भी थी। यहां पर हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट ऑफ गुड्स किया है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो उस मूवमेंट ऑफ गुड्स का की वैल्यू भी हमको क्या करना है, इस ₹50,000 में हमें इंक्लूड करना है। और ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उससे हमने कोई इनवर्ड सप्लाई, मतलब कोई सामान परचेज किया है, इनवर्ड सप्लाई की है, तो उस इनवर्ड सप्लाई की वैल्यू भी हमको यहां पर इंक्लूड करनी है व्हाइल कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ ₹50,000। अच्छा, इसमें अगर मैं कहूं कि ये जो सप्लाई की वैल्यू है भाई, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कंसाइनमेंट वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे, कंसाइनमेंट वैल्यू इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 15। जो सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट हमने किया था कि वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, जिसमें हमने बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, सेम प्रोविजन सेम सेक्शन का यूज करके हमको यहां पर उसी के अकॉर्डिंग क्या करनी है, कंसाइनमेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ ₹50,000। इसमें इंक्लूड क्या करेंगे, इट इंक्लूड्स ऑल टैक्सेस, जो भी टैक्सेस हम पे कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम इंक्लूड करेंगे, बट एक्सक्लूड्स वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज, बट एक्सक्लूड्स वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, ठीक है। यहां पे हम जो एग्जेम्प्ट सप्लाई, मतलब कि कोई ऐसी सप्लाई विच आर एग्जेम्प्टेड इन जीएसटी, जिस पर हमारा जीएसटी नहीं एप्लीकेबल है, एग्जेम्प्टेड है, मतलब दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, तो इन दैट पर्टिकुलर केस दो सप्लाईज विल नॉट बी इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ ₹50,000। अच्छा, यहां पे देखो जो मैं कह रहा हूं कि सप्लाई यहां पे जो है अदर देन सप्लाई, जो सिर्फ मूवमेंट हम कर रहे हैं, तो उसको भी इंक्लूड करेंगे। तो व्हाट डज इट मीन? तो फॉर दिस पर्पज अ सप्लाई में बी ईदर ऑफ द फॉलोइंग। सप्लाई क्या हो सकती, मैंने कहा सप्लाई है तो ठीक है, सप्लाई नहीं भी है, सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट है गुड्स का, तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे किसमें, ₹50,000 में। तो उसमें क्या है, अ सप्लाई मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, हम सप्लाई कर रहे हैं फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कि सप्लाई की डेफिनेशन है, उसको तो इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। दूसरा है अ सप्लाई मेड फॉर कंसिडरेशन विच मे नॉट बी इन कोर्स ऑफ बिजनेस, कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, बट स्टिल इफ आई एम मेकिंग द मूवमेंट ऑफ दोज गुड्स, in that particular case that will be included in your 50,000 limit. A supply without consideration, in simpler terms, that supply usually means sale of goods and payment made, मतलब अगर हम गुड्स को सेल कर रहे हैं तो वो तो इंक्लूड होगी होगी। ब्रांच ट्रांसफर्स, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज मियर ट्रांसफर, मूवमेंट ऑफ गुड्स, वहां पर हम कुछ सप्लाई नहीं कर रहे हैं, सेल नहीं कर रहे हैं, only mere transfer of goods from one branch to another branch, so that is also included in your 50,000 value. Barter exchange, where the payment is by goods instead of in money, अगर वहां पर कोई barter exchange है, goods के बदले goods है, तो that will also be included while counting the limit of ₹50,000. So therefore e-way bills must be generated on the common portal for all these types of movements. जो जीएसटी बिल आपको जनरेट करना है वो इन सभी केसेस में हमको करना है
कि जहां पर इन सभी केसेस को इंक्लूड करने के बाद इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स इज रुपीज मोर देन 50,000, तो in that particular case it is required to generate the e-way bill. For certain specified goods the e-way bill needs to be generated mandatory even if the value of consignment of goods is less than rupees 50,000. ठीक है, तो वो देखो एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे एक्सेप्शन भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सेप्शंस क्या है, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जहां पर उसकी वैल्यू अगर लेस देन रुपीज 50,000 है तो इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो ई-वे बिल जनरेशन इज रिक्वायर्ड. मैंने पहले क्या कहा सर, आप तो अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. अभी तो आपने कहा कि 50,000 से ज्यादा वैल्यू ऑफ गुड्स अगर हम मूव करा रहे हैं तो ई-वे बिल की जनरेशन रिक्वायर्ड है. अब आप कह रहे हो कि 50,000 से कम भी है तो भी जनरेशन रिक्वायर्ड है. तो बेटा ये एक्सेप्शन में आएगा. यहां पर क्या है कि अगर 50,000 से ज्यादा की वैल्यू हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं गुड्स को, तो वहां पे तो मैंडेटरी जनरेशन है ही. इन सर्टेन केसेस इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स मूव्ड या being moved is less than rupees 50,000, in that particular case you are required to be generate e-way bill on mandatory basis. And what are those conditions? पहला है interstate movement of goods by the principal to job worker or by principal registered job worker. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सपोज दैट कोई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने किसी जॉब वर्कर से जो है उसने कुछ काम करवाया. ठीक है, उसको प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को जो उसके बिहाफ पे काम कर रहा है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा है, कुछ काम है, उसके लिए उसने कुछ गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया है. सपोज दैट प्रिंसिपल जो है वो महाराष्ट्र का है एंड जॉब वर्कर जो है ही इज फ्रॉम दिल्ली. जॉब वर्कर जो है दिल्ली का है. यहाँ पर क्या हो गया, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स हो गया. इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स के केस में क्या है कि उस केस में जो प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को गुड्स मूव किए हैं that is of rupees 25,000. It means less than 50,000 है. तो 50,000 से लेस होने के बाद भी अगर कोई मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है बाय द प्रिंसिपल टू इट्स जॉब वर्कर, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ई-वे बिल जनरेशन इज रिक्वायर्ड ऑन मैंडेटरी बेसिस. चाहे वो 10,000 का हो, चाहे वो 15,000 का हो, कितने का भी हो, मीन्स अगर वो लेस देन भी 50,000 है तो इन दैट पर्टिकुलर केस द ई-वे बिल जनरेशन इज रिक्वायर्ड. किस केस में? जब गुड्स मूव हो रहा है, कौन कर रहा है? प्रिंसिपल कर रहा है. किसके लिए? जॉब वर्कर के लिए. सपोज दैट मेरा कोई जॉब वर्कर है, मेरे लिए कोई काम करता है दिल्ली में बैठे बैठे, मैं उसको अपना काम देता हूँ, वो मेरे लिए काम करता है, मैं उसका प्रिंसिपल हूँ, मैं उसको कमीशन देता हूँ या कुछ भी देता हूँ. ठीक है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस अगर कोई गुड्स मैंने उसको ट्रांसफर किए हैं, मूव कराए हैं एंड उनकी उस गुड्स की वैल्यू जो है लेस देन 50,000 है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ऑल्सो द ई-वे बिल जनरेशन इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड. दूसरा है interstate transport of handicraft goods by a dealer exempted from GST registration. ठीक है, तो यहां पर क्या है, those persons who are exempted to get the registration number under GST, तो उस केस में क्या है कि अगर वो पर्सन हैंडीक्राफ्ट गुड्स मूव कर रहा है इंटरस्टेट, तो ही इज रिक्वायर्ड टू जनरेट ई-वे बिल. तो इसमें देखिए अगर हम इसको बाइफरकेट करना चाहें तो इसमें 3 पॉइंट्स बन सकते हैं. पहला क्या है, देयर शुड बी एन इंटरस्टेट मूवमेंट, there should be an interstate movement of goods. दूसरा है handicraft goods should be there, handicraft goods should be there, and तीसरा है it should be by unregistered person, means it should be a dealer exempted to take मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, एग्जेम्प्टेड टू टेक रजिस्ट्रेशन. जैसे एक सीटीपी क्या होता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्संस. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो होते हैं जो फॉर टाइम बिंग जिनके लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि कभी एग्जीबिशन लग गया, हमने एग्जीबिशन में अपनी शॉप लगा दी, ठीक है, या कभी दिल्ली हाट में हमने अपनी शॉप लगा दी, तो वहाँ पे 10 to 15 डेज के लिए हमने अपनी शॉप लगाई है, तो यू आर रिक्वायर्ड टू टेक द रजिस्ट्रेशन फॉर 10 to 15 डेज ओनली. तो वो क्या होता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं. अब वो स्टेट वाइज, कभी उन्होंने दिल्ली में मार्केट लगा ली, कभी मुंबई में जाके मार्केट लगा ली, कभी गुजरात में जाकर के मार्केट लगा ली. तो जब जितने दिनों के लिए वो मार्केट लगाते हैं उतने दिनों के लिए अलग अलग स्टेट्स में उनको अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है, तो उनको क्या बोलते हैं? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं. तो इन दैट पर्टिकुलर केस, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के केस में अगर इफ दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक द मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, उनके केस में कुछ 10 या 20 लाख की लिमिट है, अगर उसके बाद भी मतलब कि उनकी क्या कहते हैं कि जो टर्नओवर है वो 10 to 20 लाख के बिलो है, तो दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक द मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन. ठीक है,
तो in that particular case, if the dealer is not required to take registration and he is moving the goods interstate, and goods किस नेचर का है, वो handicraft goods है, तो in that particular case the person is required to generate e-way bill even if the value of e-way bill is less, value of goods so moved is less than rupees 50,000. तो ये दो exceptions थे जहां पर generation of e-way bill is mandatory even when the value of goods is less than rupees 50,000. ठीक है. नेक्स्ट है, who should generate an e-way bill? Who are required to generate an e-way bill? तो सबसे पहला है registered person. A e-way bill must be generated where there is a movement of goods of more than rupees 50,000 in value to or from a registered person. किसी रजिस्टर्ड पर्सन को हम मूव करा रहे हैं या कोई रजिस्टर्ड पर्सन मूव करा रहा है गुड्स टू एंड फ्रॉम. इफ द goods are moved to registered person and if the goods are moved from a registered person, in that particular case that registered person is required to generate e-way bill. ठीक है. तो a registered person or the transporter may choose to generate and carry e-way bill even if the value of goods is less than rupees 50,000. तो it is voluntary कि अगर वो चाहते हैं कि भाई रास्ते की किसी रोक टोक से हम बच जाएं, हमको कोई रोके टोके ना, तो दे कैन जनरेट एन ई-वे बिल इवन व्हेन द वैल्यू इज लेस देन रुपीज 50,000. तो 50,000 से ऊपर तो कोई चॉइस ही नहीं है, जनरेट करना ही करना है. बट 50,000 से बिलो भी अगर उनकी वैल्यू ऑफ गुड्स जो ट्रांसपोर्ट हो रही है उनकी वैल्यू अगर 50,000 से बिलो भी है तो इट इज एट द ऑप्शन ऑफ सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन और ट्रांसपोर्टर टू जनरेट एन ई-वे बिल. ठीक है. तो इट इज एट द ऑप्शन ऑफ ट्रांसपोर्टर और रजिस्टर्ड पर्सन. दूसरा है अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन ऑल्सो जनरेट ई-वे बिल. सो अनरजिस्टर्ड पर्सन्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू जनरेट ई-वे बिल. However, where a supply is made by an unregistered person to a registered person, the receiver will have to ensure all the compliances are met if they were the supplier. इसका क्या मतलब है कि unregistered person को भी required है ई-वे बिल जनरेट करना. अगर सपोज दैट कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो रजिस्टर्ड पर्सन को क्या कर रहा है, गुड सप्लाई कर रहा है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस it is the duty of the registered person to make sure कि all the compliances of the generation of e-way bill are complied with. जो भी compliances हैं वो fulfill हो गए हैं. ये किसकी ड्यूटी है, रजिस्टर्ड पर्सन की है. if the supply is made between unregistered person to a registered person, अगर कोई सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन और रजिस्टर्ड पर्सन के बीच में हो रही है तो इन दैट पर्टिकुलर केस द रजिस्टर्ड पर्सन should make ensure that all the compliances are fulfilled. So where the movement is caused by an unregistered person either in his own conveyance or had one or through a transporter, he or the transporter may at their option generate the e-way bill. ठीक है. तो अनरजिस्टर्ड पर्सन भी जनरेट कर सकता है और ट्रांसपोर्टर भी जनरेट कर सकता है एट द ऑप्शन ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन. लेकिन ड्यूटी किसकी बनती है, ड्यूटी रजिस्टर्ड पर्सन की बनती है जो कि रिसिपिएंट है. उसकी ड्यूटी बनती है कि वो चेक करे, एंश्योर करे कि सारे कंप्लायंसेस जो हैं वो फुलफिल हो गए हैं कि नहीं हुए हैं. ठीक है. तो वेयर अ सप्लाई इज मेड बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, द रिसीवर विल हैव टू एंश्योर, जो रिसीवर है गुड्स का उसको एंश्योर करना है, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को एंश्योर करना है दैट ऑल द कंप्लायंसेस आर मेट एज इफ दे वेयर द सप्लायर. उसको अपने आप को सप्लायर अज्यूम करके ये देखना है कि सारे कंप्लायंसेस जो हैं रिगार्डिंग द जनरेशन ऑफ ई-वे बिल वो फुलफिल हो गए हैं कि नहीं हुए हैं. दूसरा है ट्रांसपोर्टर. ट्रांसपोर्टर कैन ऑल्सो जनरेट द ई-वे बिल. ट्रांसपोर्टर कैरिंग गुड्स बाय रोड, एयर, रेल एटसेट्रा ऑल्सो नीड टू जनरेट ई-वे बिल इफ द सप्लायर हैज नॉट जनरेटेड एन ई-वे बिल. इन केस कि सप्लायर जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन है बट सप्लायर हैज नॉट जनरेटेड एन ई-वे बिल, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ऑन ऑथराइजेशन ऑफ सप्लायर the transporter may also generate e-way bill. उसमें क्या होगा, ट्रांसपोर्टर on the basis of information provided by the supplier will generate e-way bill. इसमें क्या है कि वो e-way bill पोर्टल पे वो सारी इंफॉर्मेशन जो सप्लायर ने उसे प्रोवाइड की है, भाई वो जाहिर सी बात है सप्लायर की इंफॉर्मेशन तो उसके पास है नहीं कि सप्लायर का क्या जीएसटी नंबर है, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उस ट्रांसपोर्टर का इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन
ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सप्लायर, जो रजिस्टर्ड पर्सन उसने अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी, तो ऑन द बेसिस ऑफ दोज इंफॉर्मेशंस द ट्रांसपोर्टर कैन ऑल्सो जनरेट ई वे बिल। तो यहाँ पर कौन कौन, हु आर द पर्सन हु कैन जनरेट ई वे बिल? सो रजिस्टर्ड पर्सन कैन जनरेट ई वे बिल, उसकी कंडीशन मैंने डिस्कस की। एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन ऑल्सो जनरेट ई वे बिल, जो कि उसकी भी कंडीशन मैंने डिस्कस कर ली। और तीसरा क्या है? ट्रांसपोर्टर कैन ऑल्सो जनरेट द ई वे बिल इफ द सेम इज नॉट जनरेटेड बाय सप्लायर। अगर सप्लायर ने उसको जनरेट नहीं किया है तो इन दैट पर्टिकुलर केस द ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स इज रिक्वायर्ड टू जनरेट एन ई वे बिल। अच्छा, until a date is yet to be notified, the transporter need not to generate the e-way bill where all the consignment in the conveyance individually is less than or equal to rupees 50,000 but in aggregate exceeds rupees 50,000। ठीक है कि इंडिविजुअली तो लेस देन 50,000 है, लेकिन अगर एग्रीगेट मिला करके वो 50,000 है, एक्सीड्स होते हैं 50,000 से, तो उस केस में हमको क्या करना है? ई-वे बिल जनरेट करना है। ठीक है। Unregistered transporters will be issued transporter ID on enrolling on the e-way bill portal, after which e-way bills can be generated। अगर कोई अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर है तो वो क्योंकि ट्रांसपोर्टर भी जनरेट कर सकता है ई-वे बिल, तो अगर कोई अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर है तो बिल कैसे जनरेट करेगा भाई? उसके पास तो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस जैसे ही वो एनरोल करता है ई-वे बिल पोर्टल पर, उसके पास एक ट्रांसपोर्टर आईडी आ जाती है। उस आईडी का यूज करके वो क्या कर सकता है? ई-वे बिल जनरेट कर सकता है। तो अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर कैन जनरेट ई-वे बिल बाय यूजिंग अ ट्रांसपोर्टर आईडी विच ही विल गेट आफ्टर एनरोलिंग हिमसेल्फ ऑन ई-वे बिल पोर्टल। जो ई-वे बिल पोर्टल है उस पर वो अपने आप को रजिस्टर, मतलब कि एनरोल करने के बाद उसको एक ट्रांसपोर्टर आईडी मिल जाएगी, जिस आईडी का यूज करके वो क्या कर सकता है? ई-वे बिल जनरेट कर सकता है। नाउ who is required to generate the e-way bill when it is required? तो पहला है every registered person under GST is required to generate e-way bill when it is required before the movement of goods। जब मूवमेंट हो रहा है तो उस मूवमेंट से पहले ही हमें क्या करना है? ई-वे बिल जनरेट कर देना है। ये नहीं कि मूवमेंट हो गया और गुड्स ऑन द वे है तो हमको ई-वे, नो, यू हैव टू जनरेट ई-वे बिल बिफोर द मूवमेंट ऑफ गुड्स, ताकि वो जो ट्रांसपोर्टर या जो ड्राइवर है उसके साथ हम क्या कर सकते हैं? उसको मूव करा सकें। ठीक है। नाउ ही हैज टू फिल पार्ट ए, जो ई-वे बिल फॉर्म है GST EWB01, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है ही इज रिक्वायर्ड टू फिल द पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST ई-वे बिल 01। ये फॉर्म नंबर है और फॉर्म नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में क्या है? वो हमारी सप्लायर की इंफॉर्मेशन होती है। पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर की इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें व्हीकल नंबर, ट्रांसपोर्टर का DL नंबर, जो भी होता है, ट्रांसपोर्टर्स की सारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। और पार्ट ए में सारा सप्लायर की इंफॉर्मेशन होती है कि गुड्स क्या गुड्स हैं, उनकी वैल्यू क्या है, किस जगह से ओरिजिनेशन हुआ है, कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन क्या है, तो सारी इंफॉर्मेशन क्या होती हैं? उसमें होती हैं। ठीक है। नाउ सेकेंड है रजिस्टर्ड पर्सन इज कंसाइनर और कंसाइनी। Registered person is consignor or consignee. Mode of transport may be owned or hired or is recipient of the goods। जो registered person है या तो consignor है, consignee है, और या तो recipient of goods है। तो in that particular case, before the movement of goods, and he has to fill the part B of GST e-way bill 01। तो ये क्या है? conditions है। Who is required to generate e-way bill? When it is required? What part should be filled and in which form? तो ये चार कंडीशंस है, तो मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। फिर तीसरा केस क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन इज कंसाइनर और कंसाइनी ऑफ गुड्स। रजिस्टर्ड पर्सन इज कंसाइनर और कंसाइनी ऑफ गुड्स आर हैंडेड ओवर टू ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स। उस केस में क्या था? वो अपनी खुद की गाड़ी से वहां पर, पहले केस में क्या किया था? उसने अपनी खुद की गाड़ी में मूव कराया था गुड्स, या उसने किसी से गाड़ी खुद हायर की और अपना मूव करा रहा है इंडिपेंडेंटली। लेकिन यहां पर क्या किया उसने गुड्स किसी पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर को दे दिया, भाई ले आप इसको लीजिए, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मूव द गुड्स। अब मैंने आपको गुड्स हैंड ओवर कर दिया, गाड़ी किसकी होगी, कौन सी गाड़ी होगी, वो ट्रांसपोर्टर की जिम्मेवारी, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। पहले केस में क्या था? मेरी जिम्मेवारी थी, या मैं अपने खुद की मोटर व्हीकल अरेंज करूं या मैं किसी से मोटर व्हीकल हायर कर लूं।
वहां पर ट्रांसपोर्टर का इंटरफेरेंस नहीं था। लेकिन यहां पर मैंने क्या किया है कि गुड्स ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर कर दिया है और मैंने कहा भाई आप इसको मूव करा दो। तो इन दैट पर्टिकुलर केस द जीएसटी ई-वे बिल is required to be generated before the movement of goods, and same part B should be fulfilled. The registered person shall furnish the information relating to the transporter in part B of form GST e-way bill 1. यहाँ पर क्या है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, हम क्योंकि कौन भर रहा है जीएसटी बिल, कौन जनरेट कर रहा है, सप्लायर जो है वो जनरेट कर रहा है, मैं सप्लायर हूं, मैं जनरेट कर रहा हूं। तो इन दैट पर्टिकुलर केस आई हैव टू टेक द इंफॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसपोर्टर। भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे गाड़ी नंबर क्या है, तुम्हारी गाड़ी का मतलब कि डीएल नंबर क्या है, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन विच आर रिक्वायर्ड शुड बी टेकन बाय द सप्लायर एंड दोज इंफॉर्मेशन शुड बी फिल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन फॉर्म जीएसटी ई-वे बिल 1 पार्ट बी। पार्ट बी में सारी ट्रांसपोर्टर की इंफॉर्मेशन जो फिल होंगी वो कौन फिल करेगा, सप्लायर फिल करेगा ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द ट्रांसपोर्टर। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स। अगर ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स जो है वो जनरेट कर रहा है ई-वे बिल, if the e-way bill is generated by transporter of goods, in that particular case the GST bill e-way bill is required to be generated before the movement of goods and generate e-way bill on the basis of information shared by the registered person in part A। यहाँ पर क्या है, सेम उसका रिवर्स है। वहां पर सप्लायर जो है वो ट्रांसपोर्टर से इंफॉर्मेशन लेकर के पार्ट बी फिल कर रहा था, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू जनरेट द ई-वे बिल। यहाँ पर ट्रांसपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू जनरेट द ई-वे बिल। भाई ट्रांसपोर्टर ने अपनी इंफॉर्मेशन तो पार्ट बी में फिल कर ली, पार्ट बी में उसने अपनी इंफॉर्मेशन, जो ट्रांसपोर्टर था उसने अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर ली। लेकिन पार्ट ए में जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो सप्लायर की इंफॉर्मेशन, वो कैसे फिल करेगा, तो दोज इंफॉर्मेशन शुड बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर। तो सप्लायर अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो ट्रांसपोर्टर है वो जीएसटी ई-वे बिल फॉर्म 1 का पार्ट ए फिल करेगा ऑन द बेसिस ऑफ दोज इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। इफ द जीएसटी बिल ई-वे बिल is generated by an unregistered person, compliance to be done by the recipient as if he is the supplier। मतलब compliance किसको करना है, registered person should ensure that all the formalities are complied with। ठीक है, ये registered person की जिम्मेवारी है। if the goods are transported for distance of 50 kilometers or less, if the तो in that particular within the same state, union territory from place of business of the consignor to the place of business of the transporter for further transportation, the supplier or the transporter may not furnish the details of conveyance in part B of the form GST e-way bill 01। if supply is made by air, ship or railways, then the information in part A of form GST e-way bill 01 has to be filled in by the consignor or the recipient। तो यहाँ पर क्या है, जो recipient of supply means goods है या registered person है जो कि goods को receive कर रहा है, he is liable to make sure that all the formalities are complied with। उसको ही क्या करना है, सारी इंफॉर्मेशन को फाइल करनी है। तो इसमें क्या है, इसमें if the goods are transported for a distance of 50 kilometers or less, अगर जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो 50 किलोमीटर या लेस की दूरी के लिए हो रहे हैं विद इन द सेम स्टेट यूनियन टेरिटरी फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंसाइनर टू द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द ट्रांसपोर्टर फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन। इसका क्या मतलब है, बिजनेस ऑफ कंसाइनर है, सपोज दैट कंसाइनर जो माल भेज रहा है वहां से लेकर के जो ट्रांसपोर्टर की जगह है वहां पर मैंने भेजा, सपोज दैट मुझे माल को मुंबई भेजना है और दिल्ली में ही द्वारका से मैंने कनॉट प्लेस, मतलब जो कंसाइनर का प्लेस ऑफ बिजनेस द्वारका में है और कनॉट प्लेस में ट्रांसपोर्टर है, तो मैंने गुड्स का मूवमेंट कराया कनॉट प्लेस, किसके लिए, ताकि फर्दर मूव कराया जा सके। मुझे पहले कंसाइनर ने क्या किया, सामान को ट्रांसपोर्टर के प्लेस ऑफ बिजनेस पर भेजा और अब ट्रांसपोर्टर उसको फर्दर ट्रांसपोर्ट कराएगा बाहर। ठीक है, तो विद इन द सेम स्टेट यूनियन टेरिटरी फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस, ये सेम स्टेट में है, दिल्ली टू दिल्ली है। ठीक है, business of the consignor to the place of business for the transporter for further transportation, the supplier or the transporter may not furnish the details of conveyance in part B of form GST e-way bill 01। ठीक है,
इफ सप्लाई इज मेड बाय एयर, शिप और रेलवे देन द इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए, मतलब कि वहां पर क्या है कि वहां पर अगर लेस देन 50 किलोमीटर मतलब कि द्वारका से कनॉट प्लेस तक में है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब जरूरी नहीं है कि वो फॉर्म बी जो ट्रांसपोर्टर की इंफॉर्मेशन उसमें उसको फिल करें, ठीक है। तो सप्लाई और द सप्लाई ट्रांसपोर्टर मे नॉट फर्निश द डिटेल्स ऑफ कन्वेंस इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म जीएसटी ई वे बिल 01। सेकंड केस क्या है, इफ सप्लाई इज मेड बाय एयर, शिप और रेलवेज देन द इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी ई वे बिल 1 हैज टू बी फिल्ड इन बाय कंसाइनर और द रिसिपिएंट, ठीक है। तो ये अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में था कि अगर हम क्या कहते हैं कि गुड्स को जो है एयर, शिप या रेलवे के थ्रू कंसाइन कर रहे हैं या मूव करा रहे हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो रिसिपिएंट है ही इज रिक्वायर्ड टू फिल द जीएसटी फॉर्म, जीएसटी ई वे बिल फॉर्म 01 पार्ट ए, ठीक है। तो ये तो हमारा था कि कब कौन करेगा, हु विल जनरेट द जीएसटी बिल, ई वे बिल, व्हेन इट इज टू बी जनरेटेड, व्हाट पार्ट शुड बी फुलफिल्ड एंड व्हाट फॉर्म शुड बी फिल्ड। नेक्स्ट है केसेस व्हेन ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड, व्हाट आर दोस केसेस व्हेन ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड। तो पहला क्या है, इन द फॉलोइंग केसेस इट इज नॉट नेसेसरी टू जनरेट ई वे बिल। पहला क्या है, द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नॉन मोटर व्हीकल, अगर नॉन मोटर व्हीकल से हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स हो रहा है तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू जनरेट। गुड्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कस्टम्स, पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स और लैंड कस्टम्स, गुड्स ट्रांसपोर्टेड अंडर कस्टम्स सुपरविजन और अंडर कस्टम्स सील, गुड्स ट्रांसपोर्टेड अंडर कस्टम्स बॉन्ड फ्रॉम आईसीडी टू कस्टम्स पोर्ट और फ्रॉम वन custom station to another custom station, transit cargo transported to or from Nepal or Bhutan, movement of goods. So these are the cases when the GST e-way bill is not required. तो ये सारे cases जो हैं you can go through these bullets, bullet में मैंने इसको लिखे हुए हैं, तो you can go through these points जहाँ पर हमारा GST e-way bill is not required to be generated. How to generate the e-way bill? किस तरह से हम e-way bill को generate करेंगे? तो सबसे पहले तो पर्सन कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स कौन करेगा, अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू मूव द गुड्स, चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, दैट पर्सन इज रिक्वायर्ड टू जनरेट द ई वे बिल। जो पर्सन गुड्स का मूवमेंट करा रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ही इज रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल। दूसरा है goes to the GST portal and inform department about each transaction detail. That person should go to the GST portal, वो GST portal पे लॉग इन करेगा and he will provide all the information in detail कि कौन सा गुड्स वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, किस क्वांटिटी में कर रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है, कहाँ से हमको ट्रांसपोर्ट करना है, प्लेस ऑफ ओरिजिनेशन, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, कहाँ को जाना है, वाया किस किस जगह से, सपोज दैट दिल्ली से महाराष्ट्र जाता है तो वाया हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यूपी, ये वाया जितने भी स्टेट्स होंगे हमको उसकी इंफॉर्मेशन भी देनी है, ट्रांसपोर्टर की इंफॉर्मेशन देनी कि भाई ड्राइवर कौन है, उसका डीएल नंबर क्या है, व्हीकल का नंबर क्या है। सो ऑल इंफॉर्मेशन शुड बी फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। सो a registered person causing, registered or unregistered person causing movement of goods should go to the GST portal and inform the department. Department को inform करेगा about each transaction detail in GST e-way bill 01. इस फॉर्म में वो सारी डिटेल्स को प्रोवाइड करेगा. Now he obtain an acknowledgement number which will be accompanied along with the goods as a valid document. ठीक है, उसको एक acknowledgement number मिल जाएगा. भाई अब रास्ते में अगर किसी ने रोका, भाई आपका ट्रक रोक करके कहेगा भाई क्या लेकर जा रहे हो, तो अब हमको ट्रक खोल करके उसको चेक कराने की जरूरत नहीं है, ये ई-वे बिल है, आप इसको जो है वेरीफाई कर लीजिए. तो वेरिफिकेशन के लिए वो ई-वे बिल नंबर जो है उसको पोर्टल पे डालेगा, वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि भाई इस फलाना ट्रक से इस ड्राइवर ने ये गुड्स इस क्वांटिटी में, इसकी वैल्यू इतनी है, यहाँ से आया है गुड्स, यहाँ को जाएगा वाया रूट्स, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रेस्ड. तो वहाँ पर इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हमको ट्रक से माल खोलना है, दिखाना है, कुछ नहीं. वो जो हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर है, वो एक्नॉलेजमेंट नंबर हम उसको दिखा करके वहाँ पे हम उसको वेरीफाई करा सकते हैं. फैसिलिटी हैज बीन प्रोवाइडेड. मैंने पहले भी कहा था कि फैसिलिटीज आ गई हैं. अब एसएमएस के थ्रू आप ई-वे बिल जनरेट या कैंसिल कर सकते हैं. थ्रू एपीआई एप्लीकेशन है, वहाँ पे हम एप्लीकेशन को फाइल करेंगे, या वेब के थ्रू जो हमारे ऐप्स हैं, एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंटरफेस, या वेब के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, ई-वे बिल को जनरेट कर सकते हैं. तो ये है द मोड ऑफ जनरेशन ऑफ ई-वे बिल, कि हम ई-वे बिल को कैसे किस तरह से जनरेट कर सकते हैं. नो, तो वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल. वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल क्या है? An e-way bill is valid for a period as listed below.
पहला क्या है, अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो। अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो नहीं है, अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो मतलब कि उनका डायमेंशन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटे मोटे व्हीकल्स हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस लेस देन 100 किलोमीटर्स, ठीक है। अगर 100 किलोमीटर्स तक अगर उनका मूवमेंट है तो इन दैट पर्टिकुलर केस उसकी 1 डे की वैलिडिटी है, ठीक है। और अगर 100 किलोमीटर से ज्यादा है, फॉर एवरी एडिशनल 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ एडिशनल 1 डे। सपोज दैट उसको 149 किलोमीटर जाने हैं, तो 100 किलोमीटर का 1 डे प्लस एडिशनल 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ 100 किलोमीटर या उसके पार्ट, तो 49 इज अ पार्ट ऑफ 100 किलोमीटर, तो 49 एडिशनल किलोमीटर्स के लिए भी एक्स्ट्रा 1 डे की वैलिडिटी है। तो टोटल 149 डेज के लिए उसकी क्या हो जाएगी, 2 डेज की वैलिडिटी हो जाएगी, जो कि कब से काउंट होगी। जो हमारे क्या कहते हैं कि वैलिडिटी काउंट होगी, दैट विल बी काउंटेड फ्रॉम द जनरेशन ऑफ ई वे बिल। जिस वक्त हमने ई वे बिल जनरेट किया उस दिन से, उस वक्त से काउंट होगी, ठीक है। तो रेलिवेंट डेट शैल मीन द डेट ऑन विच द ई वे बिल हैज बीन जनरेटेड एंड द पीरियड ऑफ वैलिडिटी shall be counted from the time at which the e-way bill has been generated, and each day shall be counted as the period expiring at midnight of the day immediately following the date of generation of the e-way bill। ऐसा नहीं है कि भाई अगर हमने क्या कहते हैं रात को 10 बजे ई-वे बिल जनरेट किया है तो रात को 10 बजे से लेके अगले रात को 10 बजे तक हम 24 आवर्स नहीं, रात को 12 बज गए एक दिन पूरा हो गया, रात को 12 बज गए एक दिन वहां पर कंप्लीट हो गया, तो मिड नाइट पे हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, आवरली बेसिस पे इसको हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो 1 डे एंड फिर फॉर एवरी एडिशनल 100 किलोमीटर्स और पार्ट देयर ऑफ देयर इज एडिशनल 1 डेज वैलिडिटी, ठीक है। तो अब आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि टाइम को कैसे काउंट करते हैं। तो आवर्स में काउंट नहीं करेंगे, डेज में काउंट करेंगे। जैसे कि रात में 7 बजे क्लियर हमने जनरेट किया है तो 12 बजे तक हम क्या लेंगे, एक दिन हो जाएगा, फिर 12 मिडनाइट के बाद से वो दूसरा दिन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है फॉर ओवर डायमेंशनल कार्गो। अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है, बहुत बड़े व्हीकल्स हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस लेस देन 20 किलोमीटर्स है तो 1 डे, फॉर एवरी एडिशनल 20 किलोमीटर्स ऑफ पार्ट देयर ऑफ एडिशनल 1 डे। मतलब 20 किलोमीटर्स के लिए हमारे क्या है, 1 डे है, और फॉर एवरी एडिशनल 20 किलोमीटर्स ऑफ पार्ट देयर ऑफ एडिशनल 1 डे जो है उसकी वैलिडिटी होगी। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे है एक इंट्रा स्टेट सप्लाई और सॉरी इंटर स्टेट सप्लाई, नॉट इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट मूवमेंट। तो while considering the generation of e-way bill, should interstate supply is taken into consideration or interstate movement of goods taken into consideration? तो generation of e-way bill के लिए interstate supply is not considered, interstate movement is considered. Sir, is there any difference between interstate supply and interstate movement? So I will say yes. Suppose that मुझे फरीदाबाद से गुड्स को ट्रांसपोर्ट मूव कराना है, कहां, गुड़गांव। ऑल्दो जो फरीदाबाद है दैट इज ऑल्सो दैट इज इन हरियाणा, और गुड़गांव जो है वो भी हरियाणा में ही है। तो अगर हम मूवमेंट करा रहे हैं फरीदाबाद से गुड़गांव तो दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई। सप्लाई तो इंटर स्टेट है, सप्लाई जो है वो इंटर स्टेट है, लेकिन इसका मूवमेंट क्या है, फरीदाबाद से गुड्स निकलेगा, पहले दिल्ली होगा, दिल्ली में होते हुए फिर हमारा क्या है, गुड़गांव जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि जो मूवमेंट है वो इंटर स्टेट हो गया। फरीदाबाद हरियाणा से निकला गुड्स, पहले दिल्ली आया, फिर दिल्ली से गुड़गांव गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है दैट इज इंटर स्टेट मूवमेंट। ऑल्दो द सप्लाई इज इंट्रा स्टेट, सप्लाई तो इंट्रा स्टेट है फ्रॉम हरियाणा टू हरियाणा, बट मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है दैट इज इंटर स्टेट। पहले वो हरियाणा से निकल के दिल्ली आया, फिर दिल्ली से निकल करके फिर वो गुड़गांव गया। तो यहां पर क्या है कि while generating e-way bill you have to consider the interstate movement, not interstate supply. interstate supply का यहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, interstate movement को ही हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, ठीक है। Now documents और डिटेल्स रिक्वायर्ड टू जनरेट ई-वे बिल, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई, चालान रिलेटेड टू द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इज रिक्वायर्ड टू जनरेट ई-वे बिल। ट्रांसपोर्ट बाय रोड,
अगर हम ट्रांसपोर्ट बाय रोड करते हैं तो ट्रांसपोर्ट आईडी और व्हीकल नंबर इज रिक्वायर्ड. ट्रांसपोर्ट बाय रेल अगर या एयर या शिप करते हैं तो ट्रांसपोर्टर आईडी, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर एंड डेट ऑन द डॉक्यूमेंट. These things are required for the generation of e-way bill. Now I hope कि I have covered all the important things which are required to be discussed in this particular e-way bill. So आज की इस वीडियो में इतने ही रखते हैं friends. So if you have liked my videos and if I am able to make you understand the concepts of e-way bill, so please like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. So thank you for now. We'll meet in the next video with some new topic. So thank you and have a good day. In my next video, I will discuss the return. Please don't forget to like my video. आगे और भी बहुत सारी वीडियोस आपके पास आने वाली हैं GST में. So please like, share and subscribe my channel. Thank you and have a good day.